Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, after completing the cell theory, cellular components, and now mitosis and meiosis, the cell divisions, we are going to discuss another topic which is of immense importance in the cell, and that is the different molecules which are present in the cell and perform different functions, and these molecules are called as biomolecules. Biomolecules are the different molecules which are present in the cell and perform different function to keep the cell alive, right? To make it living. Though these molecules are non-living, right? But they perform the functions of living, right? In fact, the cell contains different these molecules which perform different functions, right? There are about 30 bioelements in cell. There are about 30 bioelements which form these biomolecules. Of these, the four important elements or the big elements are, as you know, carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, right? The molecules, the biomolecules which are present in a cell are of two types. These biomolecules are of two types, right? Organic molecules and inorganic molecules. ठीक है बेटा? जो बायोमोलिक्यूल्स सेल के लिए जो बहुत अहम होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये दो टाइप किसके होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, राइट? ऑर्गेनिक जो है इसमें हम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा? इट इंक्लूड्स प्रोटीन्स, ठीक है, proteins, it includes fats, it includes amino acids, these organic compounds. Amino acids, they include nucleic acids, right? Nucleic acids, etc. In a similar way, the inorganic compounds include the mineral ions. For example, sodium के हैं, sodium ions, potassium ions, right? Calcium, etc. जो different ions present होते हैं in the cell, ठीक? और inorganic में आपको याद रखना है बेटा, इसमें जो plants में जो essential ये ions होते हैं, mineral ions, वो होते हैं 17. So in plants there are 17 essential ions, while as in animals there are 24 essential mineral ions, right? अच्छा बेटा, अब हम कैसी, what is the method of separating these components of cell in order to find out what is the quantity, what is the percentage of different these biomolecules in the cellular pool. Cellular pool means, my dears, cellular pools. सेल्यूलर पूल हम कहते हैं ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सेल में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं सेल्यूलर पूल. द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सेल, राइट? इसको कहते हैं सेल्यूलर पूल. अब इस सेल्यूलर पूल में हम कैसे जो है डिफरेंट जो ये क्या कहते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनकी
परसेंटेज, इनकी क्वांटिटी हम कैसे पता कर सकते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल। वी जस्ट टेक ए लिविंग टिश्यू, हम लिविंग टिश्यू को लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं विथ, इज मिक्सड विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। याद रखना बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और फिर इसके बाद जो है इसको ग्राइंड करते हैं। ठीक, उस ग्राइंडिंग के बाद जो स्लरी हमें ऑब्टेन होती है, द मिक्सचर वी ऑब्टेन, राइट, इट इज़ देन फिल्टर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेटा, ये अगर हम ऐसे टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक, यहाँ पे हम इसमें एक फनल डालेंगे, राइट, विल यूज़ ए फनल, ठीक, और यहाँ पे एक फिल्टर पेपर या कॉटन हम लेंगे। फिर जो है हम ये सेलेरी जो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुई बाय मिक्सिंग द लिविंग टिश्यू विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड and then grinding it, this celery is then filtered through this filter paper or cotton। और यहाँ पे दो तरह के सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होते हैं, एक जो यहाँ फिल्टर होते हैं और दूसरा जो यहाँ पे रहते हैं, which are left behind। ये जो फिल्टर होते हैं, that means these are the substances which are soluble in acid। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एसिड soluble pool, हम इसको कहते हैं acid soluble pool। So it contains the molecules which are present soluble in acid, and here what is left behind, the residue, this remains behind because these molecules do not dissolve in acid, so these are called acid insoluble, acid, ये इसको हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, राइट, एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब ये एसिड इनसॉल्युबल पूल जो बेटा है, इनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, किनका, एसिड इनसॉल्युबल पूल का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है 10,000 और 10,000 डेल्टॉन, 10,000 डेल्टॉन और मोर। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टॉन या इससे ज़्यादा हो सकता है, राइट। जबकि ये जो एसिड सॉल्युबल पूल, इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज़, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, इट इज़ 18 to 800 डेल्टॉन। कितना बेटा, 18 to 800 डेल्टॉन, राइट। अच्छा, अब जो ये हमारा जो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज़ 10,000 और मोर। इनमें आते हैं ये मिसाल प्रोटीन आते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड आते हैं, डीएनए आता है, आरएनए आता है, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है लिपिड्स की जो हम बात करते हैं, लिपिड्स जो है, लिपिड्स शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ माइक्रो molecules and macromolecules। Why? देखो बेटा, पहले मैं फिर एक बार कहूँगा, ये जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है, इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, राइट, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल, राइट, इनको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दैट इज़ 10,000 और मोर, और इनका जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट है, दैट इज़ 18 to 800। लेकिन लिपिड्स को जब हम देखते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, दैट इज़
800 डेल्टॉन, कुछ बुक्स में 1000 भी लिखा होता है, ठीक, जनरल 800। तो उस हिसाब से ये जो है ये आता है एसिड सॉल्युबल सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे तो ये इस पोर्शन में होगा बिकॉज इट कंटेन्स दिस मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन। लेकिन जब हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं तो ये फिल्टर हाँ नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है, उसकी वजह से जो है it is considered to be a macro molecule. So based on separation, as per separation, it is considered to be a macro molecule, ठीक है ना, macro molecule, and owing to its molecular weight it is considered to be a micro molecule. So that is why जो मैंने यहाँ पे लिखा कि it shares, ठीक, properties of both micromolecules and macromolecules depending upon its non-separation, right, and its molecular weight, which is 800 dalton. So next we'll be inshallah taking up the carbohydrates, fats, lipids one by one. Thank you.